So, greetings everyone. We'll read about nationality and statelessness now. Statelessness. Basically, here, for example, I'm presuming that most of us will be living in India, and if we have a passport or maybe a voter ID card, it will determine that we are a citizen of India, which will eventually mean that we are not stateless, right? So with this we have certain questions as well which have come in UPSC PYQs. डबल नेशनलिटी क्या होती है, नेशनलिटी क्या होता है, नोटेबम का केस था वो भी मैं आपको बताऊंगा. So nationality refers to the membership of a collective of individuals whose acts, decisions, policies are vouchsafed through the legal concept of state representing the collective. देखिए जो मैंने आपको बताया उसको ग्लोरीफाइड तरीके से लिखा गया है. नेशनलिटी का मतलब क्या हुआ, बहुत सारे कलेक्टिव हैं इंडिविजुअल्स के, ठीक है, जिनके राइट्स सेफ हैं एज द स्टेट. मतलब स्टेट हमारा इंडिया है, वो जो रिप्रेजेंट कर रहा है हम सबको, हम भी रिप्रेजेंट करते हैं और स्टेट भी हम सबको रिप्रेजेंट करता है. इट इज़ अ को एग्जिस्टेंशियल थिंग. It is for domestic law of each state to determine who is and who is not national. ये हमारा सिर्फ डोमेस्टिक लॉ ही बता सकता है. देन वी हैव दिस नोटेबॉम केस. उसमें भी लिखा गया है कि nationality is legal bond having as its basis of a social fact of attachment, genuine connection of existence and sentiments together with the existence of reciprocal rights and duties. ठीक है, रेसिप्रोकल वही को एग्जिस्टेंशियल राइट्स. ध्यान रखिए, अ स्टेट कैन नॉट क्लेम रिकग्निशन of its rules of nationality by other states unless they seek to establish the legal वही वापस एक ही बात आ जा रही है, legal bond of nationality based on individual's genuine connection with the state. ठीक है, पेन वेजिस साल्दुस तिस्किस रेलवे केस है. अ स्टेट taking up diplomatic action or international judicial proceedings on behalf of a national is in reality asserting its own right to ensure respect for international law of its own nationals. मतलब अगर कोई भी स्टेट, कोई भी नेशन अपने इंडिविजुअल या नेशनल के लिए कोई भी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स कर रहा है इंटरनेशनल फोरम्स में, तो मतलब वो रिस्पेक्ट इंश्योर कर रहा है ऑफ इट्स ओन नेशनल फॉर द इंटरनेशनल लॉज. ठीक है, सिग्निफिकेंस क्या क्या है नेशनलिटी की हम लोग ये देख लेते हैं एक बार. प्रोटेक्शन ऑफ डिप्लोमेटिक एजेंट्स, जितने भी स्टेट को इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, फॉर एग्जांपल बाहर होंगे, तो एक नेशन का कर्तव्य बनता है उसे प्रोटेक्ट करना. रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट्स टू प्रिवेंट द कमीशन ऑफ ऑफेंसेस बाय इट्स nationals against the states. State can refuse to extradite its own nationals. It's up to the state. Enemy character of nationals in cases of war is determined on the basis of nationality as well. States frequently exercise jurisdiction over criminal and other matters over the persons of their nationality. That is the scene. अब नेशनलिटी और डोमिसाइल का क्या फ़र्क होता है ये भी बता देता हूँ. बेसिस ऑफ नेशनलिटी इज़ द मेंबरशिप ऑफ अ मैन विद एन इंडिपेंडेंट कम्युनिटी, whereas domicile represents the residence of a person. Domicile of a person means his permanent residence and does not define its relationship with the nation. ठीक है, कुछ जैसे लोग होते हैं जो रहते बाहर हैं लेकिन फिर भी उनके पास OCI का कार्ड होता है. ठीक है, अगर OCI का कार्ड है, ठीक है, तो हमारे स्टेट जैसे इंडिया का
कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके तहत रहेगी जो OCIs होंगे, ठीक है, लेकिन OCI जो है उनका रेजिडेंस बाहर है, रेजिडेंस इज बाहर, राइट. सो दैट इज़ अ डिफरेंट सीन ऑल टुगेदर, ठीक है. तो इस बात का ध्यान रखना. नेशनैलिटी वर्सेस सिटीजनशिप. लीगल रिलेशनशिप which exists between national and individual, a relationship between a person and the state law, ठीक है. बहुत ही महीन फ़र्क है दोनों के बीच. लीगल रिलेशनशिप विच एग्जिस्ट्स बिटवीन नेशन एंड इंडिविजुअल इज नेशनैलिटी, ठीक है. रिलेशनशिप बिटवीन द पर्सन एंड द स्टेट लॉ is citizenship, primarily concerned with the rights and obligations vis-a-vis a state in the international arena. Right? Citizenship is primarily a concern of state law. We have to remember that. It does not grant full political rights at the same time as well. Citizens typically have full political rights over their country. ठीक है. नेशनैलिटी नहीं कर सकता, जैसे यहाँ पे नेशनैलिटी में फुल पॉलिटिकल राइट्स नहीं है एक ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया को, ठीक है. इसका ध्यान रखिए. मोड्स ऑफ एक्विजिशन एंड लॉस ऑफ सिटीजनशिप नाउ, ठीक है. बर्थ, ठीक है. नेशनैलिटी किस तरीके से होंगी. इसके अलावा मैं साथ साथ आपको ना कुछ चीज़ें और बता देता हूँ जो आपको आपके पेपर में हेल्प करेंगी, ठीक है. यहाँ लिख देता हूँ या ऊपर लिख देता हूँ, रुकिए, ऊपर जगह थी, कहाँ आ गए हम. यस, सॉरी, हेयर, ठीक है. मैं यहाँ लिखता हूँ आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं. नेशनैलिटी एंड स्टेटलेसनेस. ठीक है. नेशनैलिटी इज़ गवर्न थ्रू 1930 हेग कन्वेंशन, which is conflict of nationality laws, and statelessness is by 1954 convention on status of stateless persons, and 1961 reduction of statelessness right. This is the scene. It is basically, the Hague Convention is basically in respect to the conflict of nationality laws. सो ये चीज़ें आपको सब बतानी ज़रूरी थी, इसलिए मैंने इससे आपको बता दिया. आर्टिकल 125 इसके फंडामेंटल्स है, बहुत ईजी है. मैं चाहूँगा कि आप लोग ज़रूर पढ़ें, ठीक है. कि मतलब बेसिकली लिखा ये गया है, स्टेट कैन डिटरमाइन अंडर इट्स ओन लॉ कि नेशनल कौन है, हु आर नेशनल्स, राइट. If question arises whether a person possesses the nationality of a particular state, shall it be determined in accordance to the state or not. ठीक है. अगर 2+ स्टेट्स हैं तो कैसे गवर्न होंगी चीज़ें, ठीक है. तो ये सब चीज़ें हैं. अब मैं आपको समझा रहा था. या मोड्स ऑफ एक्विजिशन ऑफ नेशनैलिटी, राइट. इट इज़ बेसिकली थ्रू डिसेंट, बर्थ, naturalization, seed or secession, right. So these are the major 4 things. उसके अलावा मैंने सारी चीज़ें लिखी हुई हैं यहाँ पे, ठीक है.
मैं आपको समझाता हूँ कि द फर्स्ट प्रोस्पेक्ट इज़ बर्थ. Someone will acquire the nationality of a place where he or she is born. It is known as Jus soli. Also acquires nationality of his parents at the time of its birth, Jus sanguinis. Naturalization का मतलब क्या हुआ? It means no obligation to grant nationality to a person who has no relationship with the state of naturalization, which means if a person is a resident, he or she by naturalization will have the nationality of that state, or by marriage, right? Then is of course registration is always there. आप रजिस्टर करा सकते हैं अपने आप को, ठीक है, मैरिज और पेरेंटेज के थ्रू. रिजम्पशन में क्या होता है? if a person loses his nationality because of certain reasons, he may resume his nationality after the fulfillment of certain conditions. बहुत ही सिंपल है. Subjugation में क्या होता है? when the state is defeated or conquered, all citizens acquire nationality of the conquering state. मतलब सीड और सेशन का ये एग्जाम्पल है, ठीक है. जीए का रेजोल्यूशन जो है, GA resolution 55 of 153 of 2001 is the perfect example of this, right? Then we have of course given the concept of cession here, where a state has ceded its territory to another state. All the people acquire the nationality of the state in which their territory is merged. ठीक है, दो कॉन्सेप्ट हैं, या तो हार गए या जीत गए या मर्ज हो गए, ठीक है. कॉन्सेप्ट दोनों में यही है कि आपके पास उसकी नेशनैलिटी हो जाएगी. सीड के लिए जीए का रेजोल्यूशन 55/153 ऑफ 2001 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. देन किस तरीके से आप नेशनैलिटी खो सकते हैं, ये भी समझना ज़रूरी है. फर्स्ट इज़ रिलीज़. इट डिपेंड्स ऑन स्टेट लॉ. हर एक स्टेट का, हर एक नेशन का अलग डोमेस्टिक लॉ होता है इन रिस्पेक्ट टू द लॉस ऑफ नेशनैलिटी. फॉर एग्जांपल इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा गया है. कौन से पार्ट में लिखा गया है ये आपको मुझे कमेंट्स में बताना है. ईदर ऑटोमेटिकली ऑन एक्वायरिंग अनदर नेशनैलिटी और अपॉन एप्लीकेशन. वी हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ डेप्रीवेशन एज वेल, सच एज ऑब्टेनिंग एम्प्लॉयमेंट इन अनदर स्टेट विदाउट प्रायर परमिशन, राइट. लॉन्ग रेजिडेंस. अगर आप एक समय से ज़्यादा के लिए देश से बाहर रहेंगे तो आप अपनी नेशनैलिटी को भूल जाइए, ठीक है. इंडिया में आई थिंक 180 डेज़ का है. इनकम टैक्स एक्ट में भी लिखा गया, IT एक्ट में लिखा गया. अब तो IT एक्ट चेंज हो गया है. क्या है उसमें लिखा हुआ ये आप मुझे कमेंट्स में बताइए. देन रिनंसिएशन और सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन नेशनैलिटी विद अनदर. दीज आर द मोड्स in which one can lose their nationality. To increase this concept, treason अगर आप करेंगे एक स्टेट के अगेंस्ट तब आप अपनी नेशनैलिटी भूल सकते हैं. फॉर्जरी का यूज़ करेंगे, फेक डॉक्यूमेंट का यूज़ करेंगे नेशनैलिटी को ऑब्टेन करने के लिए, तब आप अपनी भूल जाइए नेशनैलिटी. अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन या फ्लैग को इंसल्ट करेंगे तो नेशनैलिटी जाने का तरीका एक और खड़ा हो जाएगा. और सारी तो मैंने आपको बताई दी जो इम्पोर्टेंट था, ठीक है. नाउ वी विल कम टू द कॉन्सेप्ट ऑफ डबल नेशनैलिटी, वेयर अ पर्सन एन्जॉयज nationality of more than one state, right? More than one state, sorry guys, more than one state by marriage or by both or by birth. वही नेचुरलाइजेशन का सीन है. हेग कॉन्फ्रेंस जो मैंने आपको बताया 1930 के ऊपर, sought to remove difficulties arising out of dual nationality. Under the convention, if a woman marries, she will automatically renunciate the nationality by the husband not to prevent wife to retain her. मतलब बेसिकली यही है इसमें लिखा हुआ कि अगर आप किसी एक स्टेट के ऑलरेडी, सॉरी आई थिंक मैंने डबल रीड कर लिया, यस,
इफ़ वुमन मैरीज शी विल ऑटोमेटिकली एक्वायर द नेशनलिटी ऑफ हर हस्बैंड। ठीक है, वो ये पैट्रियार्कल लॉ है, कहना चाहूँगा मैं कि अगर कोई भी वाइफ अपने हस्बैंड के साथ मैरी करती है तो वाइफ सिर्फ हस्बैंड का ही नेशनैलिटी एक्वायर कर सकती है। कन्वेंशन ऑन नेशनैलिटी ऑन मैरिड वुमेन आया फिर, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है इट्स ऑफ 1957, वुमेन्स नेशनैलिटी नॉट टू बी ऑटोमेटिकली अफेक्टेड बाय मैरिज टू एन एलियन, एक्विजिशन और रेनंसिएशन ऑफ नेशनैलिटी बाय द हस्बैंड शुड नॉट प्रिवेंट वाइफ टू रिटेन हर नेशनैलिटी। ठीक है, अब यहाँ पे डबल नेशनैलिटी का कॉन्सेप्ट बाइंडिंग हो जाता है कि एक वाइफ के पास दोनों स्टेट्स की नेशनैलिटी हो सकती है। जो आर्टिकल 9 है सीडॉ का, वुमेन हैव इक्वल राइट्स एज मेन टू एक्वायर, चेंज और रिटेन नेशनैलिटी एंड दैट ऑफ देयर चिल्ड्रन एज वेल। ये सीडॉ में भी पुख्ता कर दिया गया। ये तीनों लिखने अगर डबल नेशनैलिटी का क्वेश्चन आता है तो वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ व्हाट इज स्टेटलेसनेस, इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, राइट। सो 1954 की कन्वेंशन है स्टेटलेसनेस के लिए, दैट कन्वेंशन रिलेटेड टू द स्टेटस ऑफ स्टेटलेस पर्सन्स। ठीक है, उसके आर्टिकल 1 में लिखा था ना मैंने शायद से, हाँ 1954, यस, जस्ट अ सेकेंड, स्टेटलेस पर्सन्स, इसके हमें आर्टिकल 1, 2, 3, 7 एंड 12 पढ़ने हैं बेसिकली। ठीक है, उसके बाद 1961 की रिडक्शन है, उसमें स्टेटलेस, मैं आपको बता दूँ स्टेटलेसनेस होता क्या है। स्टेटलेसनेस इज़ बेसिकली ए सिचुएशन विच इज़ एनाथीमा ऑफ इंटरनेशनल लॉ। एनाथीमा मतलब अ डिसलाइक टू इंटरनेशनल लॉ। एज आई स्टेटेड, द 1954 convention along with UDHR and ICCPR etc. tries to ensure that everyone has the right to nationality। ठीक है, सबके पास एक नेशनैलिटी की राइट है, बट जो 1954 कन्वेंशन है इट strives hard to grant few rights to stateless persons in the form of education, housing, etc. As per this convention, the status of the statelessness of an individual should be mapped either through his domicile or through his residence। ठीक है, डोमिसाइल या रेजिडेंस के थ्रू आपको मैप करनी है एक बंदे की स्टेटलेसनेस। ठीक है, स्टेटलेसनेस, दैट इज़ वन थिंग। अब 1961 कन्वेंशन जो ये है मैंने आपको बताई, 1961 कन्वेंशन ऑन रिडक्शन ऑफ स्टेटलेसनेस, it tries to obligate to reduce statelessness as it is very much visible from the heading of the law itself. However, since granting nationality or termination is governed through municipal law primarily, therefore any attempt externally to impose obligation of state to accept and accommodate stateless individuals will fail। देखिए, आइडियली ये डोमेस्टिक लॉ का एक इशू है, बस ये गवर्न करने के लिए एक इंटरनेशनल लॉ एक ट्रीटी टाइप बना दिया है, ट्रीटी या लॉ बना दिया है, ताकि एक बेसिक लॉ सबके पास हो कि किस तरीके से स्टेटलेसनेस को हमें रिड्यूस करना है। ठीक है, ऑल्सो फॉर द कॉन्सेप्ट ऑफ डबल नेशनैलिटी देयर इज दिस लाइकेनस्टाइन वर्सेस ग्वाटेमाला केस। ठीक है, लाइकेनस्टाइन versus Guatemala case, right, in which Mr. Nottebohm was there. He was a German citizen. In from 1905 to 45. 1905 to 45 he was in Guatemala, family residence
प्रॉपर्टी सब वहीं था, बट ये साथ साथ लाइकनस्टीन में भी जाता था, ठीक है। फिर ये नॉटेबॉम साहब अरेस्ट हो गए ग्वाटेमाला में फॉर बीइंग एन एनिमी एलियन एंड देन ही वाज सेंट टू यूएस. ICJ then stated that Mr. Nottingham has no genuine connection with Liechtenstein, whereas all links are close to Guatemala. Near acquisition of citizenship does not entitle the person to be a national of the country. इस बात का ध्यान रखना है. मतलब ये 1939 में ना ये लाइकेनस्टीन के सिटीज़न बन गए थे, ठीक है. अगर तुम किसी भी स्टेट के सिटीज़न बन जाते हो, ठीक है, ये डायरेक्ट रिलेशन नहीं है टू बी नेशनल ऑफ दैट स्टेट, ठीक है. ये डिफरेंस है, ये हमें समझना ज़रूरी था, ठीक है. मैं स्टेटलेसनेस में आप लोगों को बता देता हूँ. राइट, अ सिचुएशन वेयर इन अ पर्सन डज नॉट पोजेस द नेशनलिटी ऑफ द स्टेट. जैसे मैंने आपको बताया हेग कन्वेंशन का आर्टिकल 2, द क्वेश्चन ऑफ नेशनलिटी मस्ट बी डिसाइडेड बाय म्यूनिसिपल लॉ. मैंने बताया आपको पहले ऊपर जब मैं आपको समझा रहा था, ठीक है. ओपनहाइमर वर्सेस स्कैटरबोल का केस है, इसने भी यही प्रिंसिपल को फॉलो किया था. आर्टिकल 15 भी यही फॉलो करता है, सबके पास नेशनैलिटी होनी चाहिए, ठीक है. एंड नेशनैलिटी ऑफ एनी पर्सन कैन नॉट बी टेकन अवे आर्बिट्ररीली, ठीक है. CRC 1989 आर्टिकल 7 क्या कहता है? एवरी चाइल्ड हैज़ अ राइट टू अ नेशनैलिटी फ्रॉम द बर्थ. ये 1961 का कन्वेंशन भी मैंने आपको बताया, इंडिया ने इसे साइन नहीं किया है, ये हमें ध्यान रखना है. Provided that the party to the convention shall grant nationality to a person born in its territory who would be otherwise stateless. Hague Convention, first step to remove difficulties arising out of statelessness and to lessen the number of stateless persons. ठीक है. Convention on Reduction एक significant improvement थी. Duty of states not to deprive nationality of persons unless there is sufficient cause for it. ठीक है, ये हमने पढ़ा ही है, ये भी पढ़ा हमने, ये भी पढ़ा, ये हमने ऊपर पढ़ लिया है, ठीक है. ये दोनों चीज़ें इंडिया ने साइन नहीं करी है, इस बात का हमें ध्यान रखना है, ठीक है. आई होप यू लाइक द वीडियो, इट वॉज वेरी थॉरो. डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. हैव अ ग्रेट डे हेड.